Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 14 श्लोका नंबर 3। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्रतात्मनाम्. He saw that the direction of eternal time had changed, and this was very fearful. There were disruptions in the seasonal regularities. The people in general had become very greedy, angry, and deceitful, and he saw that they were adopting foul means of livelihood. Hare Krishna. जिह्म प्रायं व्यवरतां शाठ्यमिश्रं च सौहृदं पित्रमात्रसुहृदर्भ्रात्र दम्पतीनां च कल्कनम्. All ordinary transactions and dealings became polluted with cheating, even between friends. And in familial affairs, there was always misunderstanding between fathers, mothers, and sons, between well wishers and between brothers, even between husband and wife, there was always strain and quarrel. Hare Krishna. Maharaj Yudhishthir was astonished to experience even a slight change in the godly atmosphere of his kingdom. At once he suspected the disappearance of the Lord. Foul means of livelihood implies deviation from one's occupational duty. There are prescribed duties for everyone, such as the Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. But anyone who deviates from his prescribed duty and declares another's duty to be his own is following a foul and improper duty. A man becomes too greedy for wealth and power when he has no higher objective in life and when he thinks that this earthly life of few years is all in all. Ignorance is the cause of for all these anomalies in human society. And to remove this ignorance, especially in this age of degradation, the powerful sun is there to distribute light in shape of Srimad Bhagavatam. We go to shloka number 4. झिमप्रायं व्यवहार्तं शात्यमिश्रं च सौहृदं पितृमात्र सुहृद भ्रात्र दंपतीनां च कलकनम. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation: all ordinary transactions and dealings become polluted with cheating, even between friends, and in familial affairs there was always misunderstanding between fathers, mothers, and sons, between well-wishers and between brothers. Even between husband and wife there was always strain and quarrel. Purport: a conditioned living being is endowed with four principles of malpractice, namely errors, insanity, inability, and cheating. These are signs of imperfection, and out of the four, the propensity to cheat others is most prominent. And this cheating practice is there in the conditioned souls because the conditioned souls are primarily in this material world, imbued with an unnatural desire to lord it over the material world. A living being in his pure state is not conditioned by the laws because in pure state he is conscious that a living being is eternally subservient to the Supreme Being. And thus it is always good for him to remain subservient instead of falsely trying to lord it over the property of the Supreme Lord. In the conditioned state, the living being is not satisfied even if he actually becomes the lord of all that he surveys,
which he never becomes. And therefore, he becomes the victim of all kinds of cheating, even with his nearest and most intimate relations. In such an unsatisfactory state of affairs, there is no harmony, even between father and sons, or between husband and wife. But all these contending difficulties can be mitigated by one process, and that is the devotional service of the Lord. The the world of hypocrisy can be checked only by counteraction through devotional service to the Lord and nothing else. Maharaj Yudhishthir, having observed the disparities, conjectured, conjectured the disappearance of the Lord from the earth. Hare Krishna. हरे कृष्णा Hare Krishna Gopinath Prabhu, Danat Pranam. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। वो गोपी गीता माता जी फोन नहीं उठा रही है वैसे माता जी का भी, तो अगर हम लोग खाली पढ़ के खाली एक एक पॉइंट सब लोग समीर प्रभु, सत्यराज प्रभु, सर्वोदय प्रभु, आप लोग एक एक पॉइंट इलेबरेट कर सकते हैं तो इवन दैट इज ओके, व्हाटएवर वी हैव हर्ड फ्रॉम आचार्य। मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं तो आई वुड हैव टेकन दैट। Yeah, Hare Krishna Prabhuji. Can I read Prabhu? Yeah. Hare Krishna. Yes, प्रभु। Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु आज हम फर्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु अभी सूरत माधव प्रभु जी ने श्लोक का और तात्पर्य पढ़ लिया है, इसके ऊपर अभी हम लोग को समझाना है क्या क्या हर एक को, जैसे उस दिन समझाए थे ना माता जी, नहीं है तो एक एक पॉइंट्स सब अपने। हाँ ओके ओके। तो सूरत माधव प्रभु स्टार्ट कर रहे हैं माता जी। नहीं, उन्होंने पढ़ लिया ऑलरेडी, श्लोक का तात्पर्य अच्छा पढ़ अच्छा, लिया। ओके ओके ठीक है। या माता जी। तो हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि अभी मतलब इस अध्याय में हम लोग मतलब भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान देख रहे हैं। तो जैसे कि सूरत माधव प्रभु जी ने जो आज का श्लोक पढ़ा था, तो इससे हम ये देख रहे हैं कि जब मतलब ये बहुत मतलब जैसे भगवान इस धराधाम से अभी जाने वाले हैं, तो जब भगवान जा रहे हैं तो आज वही श्लोक में ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब कितना कुछ मतलब अनऑस्पिशियस वो मतलब ना सब कुछ चेंज हो रहा है। मतलब ना यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि या मतलब जो भी मतलब जो कार्य है अनऑस्पिशियस कार्य, वो सब बढ़ता जाएगा, क्योंकि भगवान इस धराधाम से जा रहे हैं।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस यही तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं। या सरुत माधव प्रभु, कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट, बिकॉज मैं था नहीं तभी। हरे कृष्णा सूरत माधव प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिमित कृपातमहं श्री गुरुदीन तारण परमानंद श्री चैतन्य ईश्वर। तो यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो नॉर्मल जो एक प्रकृति का एक ये रहता है, क्या बोलते हैं, एक साइकिल रहता है, वो पूरा जो है चेंज हो जाता है। तो कभी कभी हम देख सकते हैं कि बारिश के टाइम में जो जैसे बहुत सारे फार्मर्स को जो तकलीफ होती वर्षा ना होने के कारण, या जब समर के सीजन के टाइम में एकदम ज्यादा कड़क धूप, ये सारे चीजें जो प्रभुपाद है इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तो ये सारा जो एक जीव के लिए जो लिविंग कंडीशन है वो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब टाइम पे वर्षा ना होना, कड़क धूप होना या सूखा पड़ना। और प्रभुपाद बोलते हैं क्यों होता है कि जब हम वो जो अपना जो लोभ बढ़ता है, हम लोग अधर्मी तरह, मतलब लोगों को जो हम लोग चीटिंग करके अपना जो लाइफ हम लोग जीते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जो लिख रहे हैं, when a civilization is disconnected from loving relationship of supreme lord, like changes of seasonal regulation, foul means of livelihood, greed, anger and fraudulence becomes rampant। जो हम लोग अभी देख रहे हैं, तो इस तरह से जब हम जीते हैं तभी, और वो क्यों, क्योंकि हम जब भगवान से डिस्कनेक्ट होते हैं इन लविंग रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। और ये महाराज युधिष्ठिर के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। महाराज युधिष्ठिर के टाइम्स हर चीज एकदम प्रॉपर थी। मतलब और मतलब इवन ये सीजनल चेंजेस जो है जो हम लोगों को हम लोग बात करते हैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अधर्म। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि क्योंकि अभी पेड़ काट रहे हैं लोग और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसके वजह से ये सब हो रहा है। और वो भी कारण क्यों है, क्योंकि जब आदमी का ग्रीड बढ़ता है तब वो जो प्रकृति का भी शोषण करना शुरू करता है। और ये जब प्रकृति का शोषण होता है तभी वो लास्ट में हमको ही तकलीफ आती है। ओके। और प्रभुपाद भी लिखते हैं, मैन बिकम्स टू ग्रीडी फॉर वेल्थ एंड पावर व्हेन ही हैज नो हायर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लाइफ में। जैसे हम लोग देख रहे हर कोई, इवन हम लोग भी कितना भाग रहे हैं। मतलब एवरीबडी इज रनिंग और ज्यादा पैसा कमाने के लिए और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। हर किसी को अपना स्टेटस बढ़ाना है, हर किसी को मतलब जितना हो सके ऐश्वर्य में रहना है। और बिकॉज ऑफ द करंट सोशल मीडिया इतना सारा बॉम्बार्डिंग हो रहा है, तो सब लोग सोच रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब बहुत सारा धन कमाना, बहुत बड़ा नाम कमाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये कब होता है, जब व्हेन वी डोंट हैव अ हायर पर्पस। मतलब जब हमको पता नहीं का जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो जब हमको गोल ऑफ लाइफ नहीं पता लगता तभी हम ये जो 84 लाख के योनि में गोल गोल घूमते रहते हैं। तो उस गोल गोल घूमने से अगर बाहर निकलना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड गोल ऑफ लाइफ इज कृष्ण भक्ति। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमको पता नहीं व्हाट इज एक्चुअली द हायर, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो अपना स्वार्थ जो है भगवान श्री कृष्ण होना चाहिए। जब हमको पता नहीं देन वी रन आफ्टर ये। और प्रभुपाद बोलते हैं इसका सबसे बड़ा क्या है कारण, इग्नोरेंस इज द कॉज। इग्नोरेंस, ये अज्ञानता। तो अज्ञानता के वश क्या कारण हम ये सब ऐसा हो रहा है हमारे साथ। और मेन थिंग इस अज्ञानता को दूर करने के लिए ये जो श्रीमद् भागवतम है, वो बोलते हैं ना अमल पुराण, इट हैज रीजन। एक जैसे सूर्य का उदय होते ही सारा अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह भगवान अभी जब अपने धाम चले गए, उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम नाम सूर्य का उदय किया है हमारे लिए। तो हम लोगों को इस श्रीमद् भागवतम
के आश्रय में आके अपना जीवन जो है उसको वापस उजागर करना है, क्योंकि ये जो अमल पुराण है इसमें हर एक जो शब्द है ये हमारे जीवन का हर एक अंधकार को दूर कर सकता है, और हमारा जो परम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, वैष्णव सेवा और जीवन का उद्देश्य क्या है ये हमको एकदम डायरेक्टली बताता है। नॉट मतलब ये घुमा जैसे वेद पुराण मतलब बाकी सब जो है उसमें आपको डायरेक्टली आपका उद्देश्य नहीं बताएंगे, वो आपको पहले कर्म फिर सकाम ऐसा मतलब धीरे 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 करके फिर आपको भक्ति तक लेके आते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है डायरेक्ट यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इधर आपको स्ट्रेट अवे बताया जाता है कि ह्यूमन फॉर्म, ये जो मनुष्य का जीवन है वो कृष्ण भक्ति के लिए है, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, और हमारा उद्देश्य क्या है कि भक्ति करके वापस भागवत धाम जाए और कुछ भी नहीं। तो इट इज टोटली, इसलिए उसको अमल पुराण कहते हैं। इसमें उसमें एक क्या बोलते हैं रंज मात्र भी इसमें भौतिकता नहीं है। आपको कहीं पे भी इधर यहाँ बताया नहीं जाएगा कि मतलब अगर आपको कुछ भौतिक सुख चाहिए तो आप ये करो वो करो, यहाँ पे इट इज डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस। हरे कृष्णा प्रभु। तो आप एंड फोर्थ श्लोका आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और यहाँ ये श्लोका में भी अगर मैंने कुछ मिस किया है, जो मैंने बहुत कुछ किया मिस, आप प्लीज ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। एग्जैक्टली आपने सब पॉइंट्स कवर कर लिए। ऐड करने जैसा प्रभु जी कुछ भी नहीं है। एक जस्ट मेरे मतलब ये हम लोग जो श्लोका पढ़ रहे हैं इसमें से जस्ट एक मन में ख्याल आया था कि मतलब अर्जुना जब कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका चले जाते हैं तब युधिष्ठिर महाराज को ये पता चल जाता है कि अर्जुना वहां पे जब 7 महीने नहीं थे तो उनको तुरंत पता चल जाता है कि ये जो भी वैभव है, जो भी हम लोग ने जो भी किया है वो अर्जुना की वजह से आ गया था। और आज अर्जुन और फिर हम लोग अर्जुना नहीं है तो फिर वो बोल रहे हैं कि ये सब हम लोग को ये सब दिख रहा है कि एविल की मतलब छाया बढ़ती जा रही है, जैसे आपने सब कुछ वो एक्सप्लेन किया था। तो जस्ट एक ख्याल आता कि भक्त जो है कृष्णा का भक्त, अगर हम लोग भक्त से भी अगर कृष्ण के भक्त से भी अगर दूर हो जाएंगे तो तुरंत हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग कैसे माया में फंसते रहते हैं। और फिर हम लोग वो जो षट्रिपु जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हम लोग को कैसे तुरंत जकड़ लेता है। क्योंकि अर्जुन इतने कृष्ण के इतने प्योर विशुद्ध भक्त जो थे वो भी द्वारका से निकल गए थे, वहां पे चले गए थे, जबकि युधिष्ठिर और बाकी के 4 पांडव भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन ये जो पूरा जो कली का जो एंट्रेंस था उसमें भक्त से अगर कोई बिछड़ जाता है, कृष्ण तो मतलब एनीवे वो द्वारका मतलब वो अपना खत्म ही कर रहे थे, मतलब अवतार यहाँ से खत्म करके वापस वो अपने वृंदावन धाम जाने वाले थे। लेकिन भक्त जो यहाँ से छोड़ के वहां पे भी चला गया था, उससे उसके वजह से भी कितनी अनार्की बोल सकते वैसे, मतलब कितना अधर्म और ये सब चालू हो गया था प्रभु जी। जस्ट मुझे लगा था कि ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर पॉइंट प्रभु, बहुत ही सुंदर। क्योंकि वही हम देख एक्चुअली महाराज युधिष्ठिर जैसे लॉर्ड अभी नहीं है तो कितने दुखी हो जाते हैं। हमारा क्या है, भक्ति में आने के बाद अगर हमको कुछ ऐश्वर्य मिल जाता है तो हम उस ऐश्वर्य में इतना उस एंजॉय करने में इतना ये हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमको किसने दिया है और किस लिए दिया है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति, वो पॉइंट हम भूल जाते हैं। एंड वी फील हम लोग अभी एंजॉय करेंगे क्योंकि मैंने इतना भक्ति किया, इतना प्रयास किया, इसलिए मुझे भगवान ने दिया है, तो ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए। और यहाँ पे पांडव क्योंकि कृष्ण नहीं है, वो जो भले ही वो युधिष्ठिर अभी पूरे देश के सम्राट है, ही इज फीलिंग टोटली डिसकंटेंट। तो अपना भी ऐसा ही यही सीखना चाहिए पांडवों से। अगर कृष्णा नहीं तो एवरीथिंग इज एज गुड एज जीरो। हरे कृष्णा। और इस श्लोका में थर्ड तात्पर्य में ये भी बताया है कि इस वक्त
अभी तक जो है ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य कर रहा था, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य, शूद्र शूद्र का कार्य, सब लोग अपने धर्मानुसार वर्णानुसार सब कार्य कर रहे थे। लेकिन इस वक्त से जब युधिष्ठिर महाराज को ये सब लक्षण दिखने लगे कि सब कुछ अशुभ हो रहा है, सब क्या बोलते अशुभ लक्षण दिखने लगे थे, और ये आपने जैसे अभी बताया कि ऋतु अलग अलग ऋतु में अलग अलग सब हो रहा था, वर्षा बहुत ज्यादा हो रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा इसी तरह शूद्र शूद्र का काम नहीं कर रहा था, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा था, जैसे अभी है कलयुग में सब शूद्र हो गए, ऐसे तभी से कुछ लक्षण दिखने लगे थे। और फिर उसके बाद वाले श्लोका में है कि सारे लोग जो है पहले के जमाने में कैसे था कि अगर पिता ने कुछ कहा तो पुत्र वही मानेगा, जैसे पांडवों में देखा युधिष्ठिर महाराज जो थे बड़े भाई थे, और सब जो चारों भाई है वो उन्हें अपने पिता के स्थान पे मान रहे थे, और जो युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे उन्हीं के अनुसार छोटे भाई सब कर रहे थे। ये सब खत्म हो चुका था, जो पिता की बात पुत्र नहीं मान रहा था, यहाँ तक भाई भाइयों के संबंध भी अच्छे नहीं थे, सबके मन में कुछ ना कुछ शंका रहती थी, ये मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, इसके मन में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि पति पत्नी के संबंध भी बिगड़ गए थे। मतलब पहले ऐसा था कि अगर हम लोग पहले के जमाने में पति से भी कुछ बोले तो वो वही कहेगी जो पत्नी कहने वाली है, और पत्नी से कुछ कहे तो वो भी वही कहते हैं जो पति कहने वाला है। उनके दोनों का इतने स्वभाव में या विचारों में मेल था। लेकिन उसके बाद जैसे ये कलयुग का स्टार्ट हो गया, जैसे महाराज को युधिष्ठिर महाराज को ऐसे लगने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हें ऐसे लगा कि शायद भगवान इस धरती पे नहीं है और इसीलिए ये सब हो रहा है। तो इसमें तात्पर्य में यह भी आता है कि उन्हें लगा इस सब से अगर निकलना है तो इसके लिए एक ही का काम है कि भगवान की भक्ति करना है। अगर हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो इन सब समस्याओं में हम लोग फंसेंगे नहीं। हरे कृष्णा। और इसी की वजह से उन्हें युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि भगवान धरती से जा चुके हैं, क्योंकि जब तक भगवान धरती पे थे तब तक सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। हर एक वर्ण का इंसान जो उसके वर्णानुसार सब कार्य कर रहा था, ऋतु भी सब सही चल रहे थे, सबके सब पिता के पुत्र के संबंध सब कुछ अच्छे थे। लेकिन जैसे भगवान धरती से चले गए ये सब बदल गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा समीर प्रभु, सूरत माधव प्रभु, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, थैंक यू गोपी प्रभु, आपने सेवा का भी मौका दिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड श्लोका में ये भी लिखा है कि श्रीमद् भागवतम की वजह से सूरज जैसा प्रकाश, सूरज ही हमारे जीवन में, क्योंकि अज्ञान जो है उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर हम लोग के इसमें अज्ञान रहेगा तो हम लोग वैसे ही जीवन जिएंगे, बद्ध जीव। और इसमें बताया कि दो चीज, सबसे मेन चीज बताया है, एक थर्ड मीन्स श्रीमद् भागवतम का उदय, एंड फोर्थ श्लोका में बताया है कि भगवत सेवा। टू इम्पोर्टेंट थिंग्स जो इस श्लोका में हाईलाइट की है कि ये अज्ञान के वजह से बद्ध जीव को 84 लाख स्पीसीज में आना पड़ता है। तो ये फोर्थ श्लोका में लिखा है कि अभी जो लोगों का व्यवहार है, जो बद्ध जीव, तो उसमें वो लोग जो रिलेशन है वो इतना दूषित हो गया है कि इवन दो उनके पिता होने दो, उनकी वाइफ होने दो, उनके मित्र होने दो, उनके बंधु होने दो, तो ये लोगों में रिलेशंस कैसा, मतलब बोलते हैं ना कि अगर रबर स्ट्रेच होता है तो जो थीन लाइन रहता है वो इतना डिफिकल्ट हो गया कि हम लोग देख सकते हैं कि वाइफ और हस्बैंड डाइवोर्स कितने हो रहे हैं। फिर कितना, इवन तो रिलेशंस में हम लोग अपने रिलेटिव्स में भी देखते हैं कि ओनली दे वांट मनी, एक क्योंकि द रीजन पेइंग इज क्योंकि उनका अज्ञान। तो आई मीन इस श्लोका में बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि देयर आर 4 रीजंस जो दुराचार हो रहा है। तो एक तो है रॉन्ग, एक तो चीटिंग है,
दूसरा है मूर्खपना, एक अकार्यक्षम और रॉन्ग डीलिंग्स की वजह से उन्होंने बताया। और सबसे मेन चीज शिला प्रभुपाद इसमें हाईलाइट कर रही है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम लोग को पता है कि 4 रीजंस, तो चीटिंग प्रोपेंसिटी है वो ज्यादा बद्ध जीव में शिला प्रभुपाद हाईलाइट कर रहे हैं इसमें। और हर एक जीव चाहता है कि ये भौतिक प्रकृति है, उसके ऊपर मैं स्वामित्व करना चाहता हूँ। आई मीन हर एक चीज मुझे ये चाहिए। जैसे अभी सूरत माधव प्रभु ने बहुत अच्छा सा पॉइंट बताया कि एवरीबडी वांट टू इंक्रीज देयर ओन स्टेटस लाइफ में। अगर हम लोग स्टेटस में भी देखते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में सब लोग खुद का स्टेटस, वो भी इजी एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, तो एवरीबडी वांट दैट, बट नोबडी वांट कृष्णा। दे वांट सेपरेट, अलूफ रहना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। दे डजंट वांट कृष्णा इन देयर लाइफ। तो अंधकार ही रहेगा, कितना भी खुशी चाहेंगे, लेकिन खुशी हम लोग को पता है कि एक मृग जड़ है। तो शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से ये श्लोका में एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, जो बद्ध जीव है उसके बारे में शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो कभी भी स्वामित्व करना चाहता है, लेकिन वो कभी उसको प्राप्त नहीं होगा। और शिला प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि अगर आपके क्लोज रिलेटिव भी है, वो मीन्स इवन दो फादर एंड डॉटर है, या ये सब रिलेशंस कैसे हो रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं वृद्धाश्रम कितने बढ़ रहे हैं। मतलब अपने जो माता पिता है जिन्होंने अपने को जन्म दिया है, उन्होंने अपने को अच्छे संस्कार दिए हैं, और हम लोग जस्ट अज्ञानता के कारण आज वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं और डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। हर एक चीज ऐसा हो गया कि हम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद, श्रीमद् भागवतम, हम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये सब चीज गलत हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी के टाइम पे उनको ये जस्ट लक्षण दिखने लगे थे, एंड ही कम टू नो कि वर्णाश्रम धर्म भी फॉलो नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि आई मीन ये कलियुग में सब कुछ ऐसा डिस्पैरिटी चल रहा है। मीन्स कोई भी सब चीटिंग चल रहा है, सब जगह पे ऐसा चल रहा है। तो ओनली श्रीमद् भागवतम हम लोग को बचाएगा, और ओनली भगवत सेवा। एंड ये मैं पॉइंट ऐड करना चाहता था। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय प्रणाम।